Good afternoon, girls. So this is the last session for PNC, right? So we have finished almost everything, derangement and all. So last variation is left, so we'll discuss that also. But first, let's revise things, whatever we have done. So in fact, your PNC is finished. Whatever is left is like little advanced part of it. Okay. So the first thing which you all have revised everything from PNC, so you understand everything. So everybody understand what is NCR? What is the definition of NCR? That's a mathematical expression. What does it mean? Perfect. So if you have n things and you have to select r things, so you are going to say NCR, right? Okay. Now second thing is like uh, if you are selecting r a group of r students, so how many you are leaving? Group of n minus r students. So NCR is equal to perfect. And then after that, we discussed NCR into R is equal to N into N minus 1 CR minus 1. How did we come to know? Selection of a cricket team and a captain. So you have selected a cricket team and then you are selecting a captain, or select a captain and then rest of the team. So 50C11 into 11 is equal to 50 into 49C10, right? The third is NCR plus NCR plus 1 is equal to how you are arriving into it? Either Jack would be in team or Jack would be not be in team. So if I say Jack is in team, I can say 49C10, and if I say Jack is not in team, I can say 49C11. So 49C10 plus 49C11 gives you 50C11, right? After that, we went to the techniques, right? The first three techniques which we learned, one was selection technique, the other was okay. So in the selection technique, what we studied? We saw three type of bags, right? One was a collection of all distinct objects, then there was a collection of all alike objects, and then there was a collection of mixed bag. So in distinct, if you have to select R objects from n distinct objects, NCR. When you have to select R objects from n alike objects, one way. And when you have to select from a bag of from a mixed bag, then you have to break things into cases. Now the second technique was shuffling technique. Shuffling technique, again we had three bags: distinct, like, and mixed. So in this distinct, what happened? N factorial. The way you can shuffle is n factorial. In the second, the alike, that would be only one. Whenever whatever arrangement you put, all the alike objects would appear the same, right? And in the mixed bag, what we did? No. Perfect. So if I say P, Q, and R objects are alike, and total objects is n, so n factorial upon P factorial, Q factorial, R factorial, right? Okay. The third was letter and box technique. Where do we use letter and box technique? Where you have where you have two objects. One is capable of taking more than one, and other cannot be distributed. So one is shareable and the other is unshareable. So the power of choice is with unshareable. So the answer would be shareable to the power unshareable. So power किस पे है? Unshareable के पास है. So power पे कौन बैठेगा? Unshareable. Base में shareable, right? After that, what we did? We went to the circular permutation. So what is the difference between linear permutation and circular permutation? There is symmetry in circular permutation. So we have to break the symmetry. So again, we have three bags. The first bag is distinct. So n minus 1 factorial. One you will be putting it, breaking the symmetry. You will be left with n minus 1 factorial, right? In alike, all would be only one, right? And when you have a mixed bag, if there is only one unique fellow, then only you will be able to crack it, right? You have to break the symmetry and then you can be able to calculate it, right? After circular permutation, where we did? When number is not specified. So again, we had three cases: distinct, alike, and mixed. In distinct, what was the answer? To the power n, which is equal to nc naught plus nc1 plus nc2 dot ncn. So either you go through principle of sum or principle of product, you will get the same answer, and that would be 2 to the power n, right? Okay, now
Identical? N plus 1, right? Either you choose nothing or 1 or 2 or 3. Every time you choose, you have only one choice, only one way, so everything will be added. 0 would be included, so it would be N plus 1, right? And in mixed bag, you will just follow the principle of multiplication. है ना? You are going to ask every fellow whether you are in team or not in team, whether I am picking you or not picking you, right? If they are distinct, every distinct fellow will have two choice, and every alike would have p plus 1 choice. So everything needs to be multiplied because everything is broken into stages, right? After that, where did we go? If you have, let's say, identical chocolates, and you have to distribute it into distinct boxes. Identical chocolates, distinct boxes, or gifting your chocolates to 3-4 different persons, right? So what was the answer? If you have n chocolates and r distinct boxes, what would be? Okay, so we can say it's basically we are shuffling n distinct objects and r n identical objects and r minus 1 identical boundaries. So you have total n plus r minus 1 object, and you are shuffling them. So n plus r minus 1 factorial upon r minus 1 factorial upon n factorial, right? And that is why we came to the result that n minus 1 c n plus r minus 1 c r minus 1 or cn, both are right. Even the same holds true for whole number solutions, right? If I say x1 plus x2 plus x3 is equal to 20, so whole number solution would be 22c3, है ना? ऐसे ही derive किया था, right? Okay. After that, what we did? Pascal's triangle. Pascal's triangle में we understood that it's a very symmetrical one, है ना? फिर उसके बाद we saw that Pascal triangle, how it is being constructed. First row first row of the triangle has one member, that is 1. The second row has 2, 1, 1. So in this triangle you have 1 on the sides of the triangle, right? So 1, then the second fellow has 2 fellows, 1, 1. Third fellow is 1, 2, 1. Fourth fellow is 1, 3, 3, 1. So basically what we understood about it, that number is being added and then coming up. And then we realize this is nothing but selection only, NCR form only. First one is 0C0, the second row is 1C0, 1C1, the third row is 2C0, 2C1, 2C2, fourth row is 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. Similarly, as you go, the rows increases, the number of elements increases. If you are in the fifth row, so basically it's a NC 4C0, 4C1, 4C2, right? Understood? You see it's also symmetrical. And if you observe the Pascal triangle, the first row is 1, 1, 1. If you see diagonally, it's like 1, 1, 1, 1, 1. So it's all are ones, right? Now if you see the second diagonal, it's 1, 2, 3, 4, 5. It's basically natural numbers. Now if you see the third diagonal, it is 1, 3, 6, 10, 15. ये क्या है? I have already told you in sequence and series classes, this series. 1, 3, 6, 10, 15. Triangular numbers. Triangular numbers. And then the next row is tetrahedral numbers. I have already told you about it, right? है ना? फिर उसके बाद what we observed, that the sum is adding up to, if you see one row, first row is 1, the second row is 2, the third row is 4, the fourth row is 8. 2 cube. The fourth row is basically third one, because we are starting with the story from 0. Okay, so the fourth row is basically 3C0 plus 3C1 plus 3C2 plus 3C3, that is 2 cube. Then you come down, it's 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, right? And we also observe this Pascal triangle gives a coefficient of the binomial expansion. If you say a plus b to the power 0, what is it? 1. And a plus b to the power 1 is a plus b, that is 1a, 1b. The third row is a plus b ka whole square, that is a square plus 2ab plus b square, that is 1, 2, 1. And then a plus b ka whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So 1, 3, 3, 1. And similarly for 4, you get
1, 4, 6, 4, 1, and for power 5, 5 similarly. You are getting the coefficients from that, right? After that, what we studied? The hockey shape, right? So we saw the hockey identity. Like if you choose any one and if you draw a diagonal, treating that diagonal as your edge of, as a handle of your hockey. So the moment you scoop it, so the whatever you see in the handle, that will adding up to. So we understood that NC naught plus n plus 1 C1 plus n plus 2 2, मतलब आपका prefix is starting and increasing by unit and suffix is starting from 0 and increasing by 1. So the final answer, if it is ending at n plus r CR, so what will be the answer? N plus r plus 1 CR, because it's going to left. And if you are starting from right side, so basically your suffix is constant. Your suffix is constant. Either it is NCN, जैसे 5C5, 6C5, 7C5, 8C5, 9C5. So अचानक से वो fold down करेगा तो 10C6 because it's going on the right. Understood? ये the hockey stick identity. If the hockey stick identity is broken, if the hockey is broken, how to handle it? You just have to add the shorter hockey, right? And then subtract that. तो उसको आप identify करना जान गए हो दोनों तरीके से. Just you have to how to identify your hockey stick identity. Just you have to notice the prefix first. If the prefix is starting with a unit and the suffix is also having a difference of 1 or constant. And how to see whether it is broken or not broken? It should start either from NCN or NC0. So the first fellow should be, and we also know alternative way to prove this identity using the concept of Jack and team and Jack not in team. That is NCR plus NCR plus 1 is N plus 1 CR plus 1, right? Okay, after Pascal triangle we did exclusion, right? So we understood that, okay, I understand A union B. A union B means either or at least, and it is nothing but A plus B minus A and B, right? Similarly, for three things, we understood A union B union C as sigma A minus sigma AB plus ABC. The last one is without sigma because it's the only term left, right? When I say ABC, I means A intersecting B intersecting C, right? Similarly, for four terms, sigma A minus sigma AB plus sigma ABC minus sigma ABCD. That's the only term, so it will stay alone, right? Similarly, 5 के लिए क्या था? And then what we did using the concept that, okay, let's say you have 6 fellows A, B, C, D, E, F. All are sitting together. Now you have to make sure that A occupies its original position. So what will be the answer? 5 factorial. Similarly, B, C, D, and then we use the concept of exclusion, that none of them occupies its original position. So total factorial minus that, and we got the expression for derangement. So you have to, so we got the expression for Dn. What was the expression of Dn? N factorial will be outside, and the story will start from 1 upon 0 factorial with alternate plus minus 1 upon 0 factorial minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial, right? And this is the whole story of permutation and combination, right? So we'll just proceed further, see what more we can see in PNC classes, right? So revision, we have just finished the revision in 15 minutes, the whole class, PNC, right? Now let's say variation, right? You have 3 boxes. 10 balls. 3 boxes and
10 balls. You have to divide them in the ratio, matlab one box should have 5, second box should have 3, and the third box should have 2. Now the variation is, so I haven't mentioned box is identical or distinct or distinct. So I'll just make sure that ball is distinct. So all are B, right? Let's make it chocolate. Okay. Box is distinct, chocolate is distinct. Box is identical, chocolate is okay. Tell me the answers. So chocolates are distinct and you have to hmm? What do you have to do? You have to select into 2C2. That's it? Into 3 factorial. Very good. समझ में आया? I've told you we have already finished. ठीक है? समझ में आया क्या? आप पहले 5 निकालोगे, फिर 3 निकालोगे और फिर 2 निकालोगे. Since all the boxes are distinct, then 5, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 3, 5, they all will be different. So आप 5, 3, 2 को कैसे shuffle कर सकते हो? 3 factorial. Okay. Chocolates are identical, boxes is distinct. Huh? Chocolates are identical. So chocolates एक को निकाल के 5 चॉकलेट उठा के एक में डाल दिया, 3 डाल दिया, 2 डाल दिया. कितने तरीके से डालोगे? एक ही तरीके से डालोगे. 5, 3, 2 एक ही तरीके से डाला. यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एक ही तरीके से. अब उसको शफल करोगे 3 फैक्टोरियल. समझ में आया? आपने 5 निकाला एक बॉक्स में, फिर 3 निकाला. अच्छा, चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल एंड बॉक्स इज ऑल्सो आइडेंटिकल. वन वे. परफेक्ट. क्यों? आप एक पहले डालोगे 1, 1, 1 एंड नाउ द बॉक्सेस आर आइडेंटिकल. तो किसमें 5 है डजंट मैटर. ठीक है? ओके. एंड व्हाट अबाउट chocolates are distinct. Chocolates are distinct but box is not distinct. Hmm? (10C5) into 1 है ना. क्योंकि if your boxes are identical so that doesn't matter 5 किसके पास है, 3 किसके पास है, 2 किसके पास है. बट 5 डिफरेंट वाले मैटर करते हैं, इसलिए वी हैव सेलेक्टेड 10C5, 5C3. परफेक्ट. समझ में आया कि नहीं आया?
Now we are repeating the same question. We are repeating the same question, but the distribution ratio is different. 6 to 2. क्या करें? 10 से 6 into परफेक्ट. समझ में आया? क्योंकि भले ही बॉक्स डिस्टिंक्ट है लेकिन नंबर ऑफ चॉकलेट 6 to 2 है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को शफल कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है. दे आर द सेम पैटर्न, है ना. जैसे मान लो ये तीनों बॉक्स हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी. ठीक है, आपने 6 2 2 कर दिया. ठीक है, फिर आपने 6 2 2 किया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, क्या फर्क पड़ा? सेम ही है. 2 6 2 2 2 6, यही तीन डिफरेंट है, अदरवाइज कोई डिफरेंट नहीं है ना. दे आर सेम. जैसे अगर 6 3 1 होता तो आप 6 3 1 ऐसे कर सकते थे. 6 3 1, देखो इसके 6 बन जाते. 6 3 1 6 1 3 3 1 6 3 6 1 1 3 6 1 6 3, है ना. बट 2 2 इज नॉट चेंजिंग इट. बॉक्स बी में भी 2 चॉकलेट है, बॉक्स सी में भी 2 चॉकलेट है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप वो चॉकलेट उठा के सी में डाल दो, वो चॉकलेट, तो भी वो पैटर्न हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. किसमें? चूज करने टाइम. चूज करने टाइम हमने ऑलरेडी उसका ख्याल रख लिया था, कौन सा 2 उसमें जाना है, कौन सा 2 उसमें जाना है ना. सो इट वुड बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. समझ में आया? व्हाट अबाउट सेकंड? चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल, डजंट मैटर. आप क्या करेंगे? अब तो 6 2 2 है और बॉक्स डिस्टिंक्ट है. गुड. ठीक है, समझ में आया? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. नाउ बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल. 1 1 1 1 1 ही होगा ना. 1 अपॉन 2 हाफ तरीके क्या होगा? बॉक्स पे आइडेंटिकल है, तुमने 6 2 2 डाल दिया, कैसे भी करो 6 2 2 ही रहेगा. एक ही तरीका है. समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना हो गया? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तुम लोग रिदम में आगे कर दी, सोचती तो नहीं करेगी, है ना. क्या हुआ? तुमने 6 2 2 डाल दिया, अब तुम इसको शफल करना चाह रही हो. सब आइडेंटिकल है ना, कितने तरीके से शफल करोगे? एवरीथिंग इज आइडेंटिकल नाउ, राइट. इसमें 6 रख दिया है, इसमें 2 रख दिया है, इसमें 2 रख दिया है ना, तो बॉक्स इज आइडेंटिकल नो. अब बॉक्स कवर्ड है, अब दिख थोड़ी रहा है, कैसे भी रखो सेम है. ठीक. chocolates are distinct but boxes are identical. into 1 या 1 upon 2 factorial. जैसे मान लो ए बी और सी डी, ये एक्चुअली 2 बार काउंट हो गया है, लेकिन है तो सेम.
ये 2 बार काउंट हो गया है लेकिन है सेम। गेटिंग द आइडिया? ए बी सी डी रखा हुआ है चॉकलेट, या सी डी ए बी रखा हुआ है, सेम ही चीज़ है, लेकिन आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया है क्योंकि आपके बॉक्स आइडेंटिकल है, आपको तो बॉक्स दिख रहा है ना? तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया, 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? सब आइडेंटिकल है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हो, है ना? इस दोनों को फिर इसको ठीक करना होगा। कैसे ठीक करना होगा? 1/2 फैक्टोरियल से। समझ में आया? सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि रेशो शफल हो रहा है। Instead of looking into the box, you should see that ratios are being shuffled. Okay. अगर रेशो ऐसा कुछ होता, सो डिस्टिंक्ट का जो केस लेते हो ना, सेम केस लिया करो, बट रेशो को शफल किया करो अपॉन 3 फैक्टोरियल से। इट नीड्स टू बी डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो फिर। समझ में आ गया दोनों केस? Number of ways to distribute a pack of 52 cards. Number of ways to distribute a pack of 52 cards equally in 4 groups. अच्छा, ये ग्रुप्स, स्टैक्स, बंडल्स, ये क्या होता है? आइडेंटिकल होते हैं या डिस्टिंक्ट होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ग्रुप्स, स्टैक्स, बंडल्स, दे ऑल आर आइडेंटिकल। तो बताओ क्या होगा आंसर? टेल मी। क्या होगा? 52 सी 4 और 13? चार ग्रुप में बांट दिया, आपको शफल करना है क्या? दे आर लाइक एंड द रेशियो इज 1:1:1:1, तो नो शफलिंग। ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स सेम है, तो अब इसको यहाँ पे फर्स्ट तेरा है इधर, मान लो एक सेट ए इधर है, सेट बी इधर है, सेट सी इधर है, सेट डी इधर है। अब ये चारों शफल कर रहा है तो सेम ही है ना, क्योंकि ऑल आर अलाइक, नो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर सेट यहाँ, अगर इसको तुम बी यहाँ रखती और ए रखती, अरेंजमेंट क्या वो अलग हो जाता क्या? नहीं, वही रहता ना। आपने ग्रुप को अलग कर दिया है, इसमें 3 एस आ गया है तो आ गया है। अब ये 3 एस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सबके लिए बराबर हो गया, बिकॉज 4 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। तो वो उसको आप ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला है? रेशो को आप, रेशो वुड बी कंसिडर्ड कि ये शफल हो रहा है। अगर ये होता 10:12:20 कितना हो गया? 10, तो क्या करते? या इसको 9 कर देते, इसको 11 कर देते, तो क्या करते? इंटू 4 फैक्टोरियल करते। नहीं, नहीं करते, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, राइट? तो ये आंसर ये हो जाता।
ये आंसर ये रह जाता, क्योंकि एक्चुअली होता इनटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। क्यों? समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? तो ये बेसिकली फर्क नहीं पड़ रहा है कि 9, 12, 20, 11 किसके पास है। तो इसलिए 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल किया आपने, पहले रेशियो को शफल किया। समझ में आया? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या हुआ था, रेशियोज वर डिस्टिंक्ट, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा था ना। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसका पार्ट कौन सा था, देखो 5:2 वाला। तो हमने क्या किया था, बॉक्स बॉक्स जब ये बॉक्स जब आइडेंटिकल था तो क्या किया था, इंटू 1 कर दिया था, क्योंकि वो ग्रुप हमें मैटर कर ही नहीं रहा था, राइट। ये एक्चुअली अभी अब हमें मान लो ये डिफरेंट रेशियो है, तो हमने क्या किया, 4 फैक्टोरियल से किया और फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तभी ना 1 हुआ, इंटू 1। इसको हम लोग सीधे 1 लिख दे रहे थे इसलिए कंफ्यूजन नहीं लग रहा था। अभी हम सीधे 1 नहीं लिख रहे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि सब सेम बॉक्स है ना। क्लियर नॉट क्लियर? और सिंस ये रेशियो सब सेम है तो इसको 1/4 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि 1 1 1 तो एक ही पैक हो गया ना। अगर ये चार मेरे लिए सेम है, लेफ्ट राइट कुछ मैं देख नहीं रहा हूँ, तो ABCD हो या BCD हो या CDA हो या CBDA हो, सब एक है, इसलिए मैं 1/4 फैक्टोरियल करूँगा। और अगर चारों डिस्टिंक्ट है किसी रेस्पेक्ट में तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल करूँगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस वुड बी द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। सो यू हैव डिस्ट्रीब्यूट, जैसे 13 कार्ड्स निकाल के आपने एक ग्रुप में डाला, दूसरा 13 दूसरे ग्रुप में, तीसरा 13 तीसरे ग्रुप में, चौथा 13 तीसरे ग्रुप में। ठीक है, आपने 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबके पास 13 है। अब आप उसको 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, 4 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 1 पैक, सब तो एक ही है ना, सबका अरेंजमेंट एक ही है, लेकिन अभी तो आप शफल कर रहे हो ना। लेकिन आपने जैसे ये पैक बनाया, ये पैक बनाया, ये पैक बनाया, ये पैक बनाया, ठीक है, इस पैक में 13 डाला, इस पैक में 13 डाला, इस पैक में 13 डाला, इस पैक में, आपने एक्चुअली कर तो दिया ऑर्डर, इस ऑर्डर को ठीक करना होगा ना, तो 1/4 फैक्टोरियल। समझ रहे हो आप? जो ये ऑलरेडी ऑर्डर में आप डाल रहे थे 52C13, 39C13, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने ऑर्डर कंसीडर कर लिया था, एक ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, 1/4 फैक्टोरियल। समझ में आया? आप ये भी तो कर सकते थे ना, 13 उठा के फिर 52C13 इधर डाला, 39C13 इधर डाला, लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने ऐसे किया, तो उसको ठीक करने के लिए 1/4 फैक्टोरियल। समझ में आया? जो पुरानी क्लासेस अच्छे से नहीं करेगा उसको अभी समझ में आएगा कुछ भी नहीं ना? ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए प्लीज डू नॉट, अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो यू हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम टू द बेसिक्स, राइट। आई एम द वन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड, ठीक है। तो मैंने 13 कार्ड्स यहाँ रखा, 52C13 से मैंने ये कार्ड यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा 39C13 से, फिर यहाँ रखा 26C13 से, फिर यहाँ रखा 13C13 से। आपने बोला कि इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल आर सेम वन। लेकिन सर आपने जब काउंट किया तो फर्क पड़ गया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है ना, ऐसे काउंट करके रखा है ना। सर उसको अब ठीक करो, तो कैसे ठीक करोगे आप? बेसिकली ए को मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया था, तो इसको अब ठीक करने के लिए मैंने क्या करना है? समझ में आया? क्लियर? आपने फर्स्ट बॉक्स में डाल दिया 52,
सेकंड बॉक्स में डाल दिया 39 वाले से, फिर 13 डाल दिया, फिर 13 डाल दिया, 13 13 13 डाल दिया, है ना। अब आपको या तो शफल करने के लिए मैं बोलता तो आप इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अरे देखो क्या हो रहा है, क्या मैं इसको इधर से इधर करूंगा तो पैटर्न में कुछ चेंज आ रहा है, बोला नहीं, तो उसको ठीक करना होगा ना। जैसे हमने याद है, जैसे ए बी 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 सी डी ई, इसको शफल कैसे किया था, पहले सबको डिस्टिंक्ट मान लिया था, तो कितने आए थे, 3 3 6 2 8 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अरे इन दोनों का इंटरचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन दोनों के इंटरचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन तीनों के इंटरचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही किया था ना। तो उसी तरीके से जब हमने इसको, हमारे पास चारों बॉक्स पड़े थे, तो हमने ये डाल दिया, सबको हमने डाल दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इधर उधर करने से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, लेकिन इधर उधर कितने तरीके से हो रहा है, 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। समझ में आया? इट विल बी मोर क्लियर इफ आई डू द सेम क्वेश्चन। Now it's a different story. Why? Players मतलब distinct हो गया, right? Players मतलब distinct हो गया है, लेकिन still ratios are same. That is the important point. तो पहले आपने 52C13, 39C13, 26C13 into 13C13 प्लेयर्स बोलेगा उसको पहले क्यों दिया, मुझे पहले देना था। उसके बाद बोलेंगे कि चारों प्लेयर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट ये हैं, लेकिन वही चीज अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करा दूं, रमेश के पास जो पैक है और महेश के पास जो पैक है, उन दोनों को एक्सचेंज करा दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, एज ए होलिस्टिक ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको ठीक करना होगा। समझ में आया? डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ, जब मैं एक्चुअली पता है ये ऑलरेडी ले लिया गया था, समझ में आ रहे हो? अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता ना, तुम ये करते ही नहीं, यहाँ पे छोड़ देते 52 सत्य, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द ऑर्डर। समझ में आ रहा है? वो एक्सटेंडेड पोर्शन जिसको तुम सोचते नहीं हो, और वो मैं तुम्हें सोचने को बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता, 4 डिफरेंट रेशियोज होते, तो इनटू 4 फैक्टोरियल करते, इनटू क्यूब, फिर प्लेयर्स बोलता कि मेरे साथ, मेरे को 10 ही काट दिया, उसको 12 काट दिया, तो फिर उसको आपको ठीक करना होता। जब आप इक्वल डिवाइड कर रहे हो तो कोई कुछ नहीं बोल सकता डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ऑलरेडी टेकन केयर है ना। मैं 52C13 को सेलेक्ट किया हूं, अब किसी को भी दे सकता हूं ना, वो तो चूज कर रहा हूं 52 में से। समझ में आ रहा है? देखो कार्ड्स वार्ड से कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा देख लो, घर पे जाके फिर से देखना इसको। और वैसे अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है तो ज्यादा ध्यान मत देना, डिरेंजमेंट तक सॉलिड कर लो, ठीक है? क्लियर? सो बंडल, ग्रुप, दे ऑल आर अलाइक, प्लेयर्स ये सब डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। या तुम वो मेथड ये कर लो, बॉक्स डिस्टिंक्ट वाले कहानी पे, रेशो प्लेज अ मेजर रोल, रेशो प्लेज अ मेजर रोल। हर स्टोरी में अगर रेशो सेम है तो अपॉन वो कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर ऑल आइडेंटिकल्स में, क्योंकि वो 1/3 फैक्टोरियल डजंट मेक सेंस। ऐसे भी आप दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को रख सकते हो अगर ज़्यादा सर दर्द कर रहा है तो, ठीक है? अब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 10 बॉल्स हैं
एंड 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 10 balls, 4 boxes, no box has to be empty, no box has to be empty, ठीक है, 10 balls, 4 boxes. अभी इसको इतना ही करो, दो ही पार्ट करो इसका पहले. पहला वाला तो ऑलरेडी कर चुके हो तुम, है ना? पहला वाला तो बहुत आसान है. पहला क्या हुआ? बॉल्स आइडेंटिकल है, चॉकलेट्स आइडेंटिकल है, तुम अब्रॉड से आई हो, ठीक है, अब्रॉड से आई हो, 10 चॉकलेट्स लाई हो और अपने 4 फ्रेंड्स को भेजना है और सबके घर कुछ ना कुछ भेजना है, किसी के घर खाली डब्बा नहीं भेजना है, तो एक एक चॉकलेट तो सबके घर, सबके डब्बे में डाल दोगे ना? इसका क्या आंसर होगा? होल नंबर सॉल्यूशन, हर इसमें आप एक एक डाल दोगे ना? नाइन सी 3, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फॉरगेट अबाउट दिस कंडीशन. अभी क्या आंसर होगा? हाँ, फॉरगेट दिस कंडीशन. ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लास्ट क्लास में किया था. क्या होता था आंसर? 13C3. और लास्ट क्लास में मैंने 5-6 इक्वेशंस कराए थे कंडीशंस लगा के कि उसके घर 60 चॉकलेट जाना चाहिए, उसके घर 30 चॉकलेट जाना चाहिए. यहां पे क्या है? चारों के घर एक एक चॉकलेट जाना चाहिए. ये हो गया ना? एक एक चॉकलेट सबके डब्बे में डाल दिया है. अब 6 चॉकलेट बचे हैं. अब जो तुम्हारा फेवरेट है उसके हिसाब से डालो. 6 + 4 - 1 C4 - 1 हो गया 9C3, राइट? बी पार्ट बताओ. ये कंडीशन अभी नहीं है तो आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा कंडीशन है? शेयरेबल टू द पावर अनशेयरेबल. क्या होगा आंसर? 4 की पावर 10, है ना? लेकिन अब क्या क्वेश्चन है? क्यों 4 टू द पावर 10 - 1? क्यों? एक ही केस ऐसा होगा कि बस एक ही. तुम लोग बोल रहे हो कितना तरीका बोल रहे हो? 4 बॉक्स है ना,
मैं इस अकेले इस बॉक्स को के साथ खाली रख सकता हूँ कितने तरीके से, बहुत तरीके से। दो को तो और तरीके से खाली कर सकता हूँ, तीन तरीकों को तो और से खाली कर सकता हूँ। फिर अच्छा, एटलीस्ट वन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन मतलब वन एम्प्टी, एटलीस्ट वन एम्प्टी का मतलब होता है वन एम्प्टी प्लस टू एम्प्टी प्लस, ठीक है। विच मीन्स वन एम्प्टी माइनस टू एम्प्टी प्लस थ्री एम्प्टी चारों को एम्प्टी नहीं रख सकते। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन इज एम्प्टी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तकलीफ हो रही समझ में? नहीं समझ में आया? एटलीस्ट वन एम्प्टी का मतलब है या तो वन एम्प्टी होगा, या तो दो एम्प्टी होगा, या तो तीन एम्प्टी होगा, या तो चार एम्प्टी होगा। मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया एम्प्टी करने के लिए, और बाकी 4C1 से एक सिलेक्ट किया, और बाकियों में 3 टू द पावर 10। तो अभी और भी एम्प्टी रह गए हैं इस केस में। कुछ वो एम्प्टी हो गए जो दो बार एम्प्टी हो गए, जो तीन बार एम्प्टी हो गए, सब ऐड हो गए इसमें। तो फिर दो वाले को ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होता है? सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए बी सी माइनस ए, वन एम टी माइनस टू एम टी प्लस थ्री एम टी माइनस फोर एम टी विच इज जीरो। फोर सी फोर इंटू जीरो पर टेन, ठीक है। ये कौन सा हो गया? एटलीस्ट वन एम टी। टोटल माइनस एटलीस्ट एम टी इज नो एम टी। So 4 to the power 10 minus this डब्बा। समझ में आ गया? So no empty means total case minus at least one empty। सर दर्द कर रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया ना दोनों केस? एट चॉकलेट्स, थ्री बॉक्सेस। पहला क्वेश्चन है ईच बॉक्स हैज at least two chocolates. First case is chocolate is distinct, box is distinct. Chocolate is identical, box is distinct. Chocolate is identical, box is identical. Chocolate is distinct, box is identical.
पहला पार्ट पहले करो। एक बात बताओ, 8 चॉकलेट्स 3 लोगों में कैसे कैसे बांट सकते हो? अगर दो सब में मिनिमम 2 तो रखना ही है तो एक केस होगा 2 3 3 और एक केस होगा 2 4 2। और कोई केस दिख रहा है? फॉरगेट अबाउट ऑर्डर राइट नाउ। इसके अलावा कोई और रेशो दिख रहा है? 2 2 4 और 2 3 3। इसके अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये मान लो बॉक्स 1 है, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 2 ही केस होंगे। और कोई तो दिख नहीं रहा है, तो मतलब 2 केस हैं। Either you have to distribute in the ratio 2:3:3 or you have to distribute in the ratio। समझ में आ गया? पुराना क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे ही करेंगे, बट 2 केस हो जाएगा तो इट नीड्स टू बी एडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8C2 6C3 इंटू 3C3। कितने बॉक्स हैं? रेशियो कितना है? ठीक है, अच्छा, प्लस ये केस। समझ में आया? सेकंड करो आप। सेकंड बताओ कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन अब क्या हो गया है? चॉकलेट्स हो गए हैं आइडेंटिकल। है ना? 1 इंटू 1 इंटू 1 2 फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट बताओ। आइडेंटिकल है, यही 2 केस होगा। 2 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस दैट इज 8, नहीं 2। ठीक, ओके। chocolates are distinct here, so you have to do the distribution into 1/2 फैक्टोरियल दोनों में। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करो 8C2 6C3 3C3 इंटू 1/8C2 6C2 4C4 इंटू 1/2 फैक्टर। समझ में आ गया? अब फील आ रहा है कि रेशो और बॉक्स आइडेंटिकल सब में कैसे खेलना है ना? Same question, but the condition is changing. Each box can have 4 chocolates. तो अब क्या कर, कैसे तुम 8 चॉकलेट्स को डिवाइड करोगे कि मैक्सिमम 4 ही जाए किसी में, 4 से ज्यादा किसी में ना जाए? एक तो हो गया
404 431 और बताओ 422 और बताओ, अब तो 3 करना पड़ेगा, 3 3 3 2, 4 को तो नहीं ला सकते ना अब, 3 3 2 और क्या हो सकता है, और कुछ सोच सकते हो क्या, यही 4 केस दिखेगा ना, और तो कोई केस नहीं बन सकता है, इसी 4 केस पे खेलो। ठीक है, सो यू हैव डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। पहला अरेंजमेंट है 404 का, तो कर दो 8C4 यही होगा, है ना, 8C4 इंटू 4C4 इंटू 4 चूज 0 कर दो यहाँ पे 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल, ऑल आर डिस्टिंक्ट हियर, अभी पहला ही पार्ट हो रहा है ना, इसमें मत चली जाओ, ठीक है, इसमें मत जाओ, अभी पहला ही केस चल रहा है, समझ में आ गया, नाउ दे विल बी एडेड। अब आ जाओ सेकंड करो, सेकंड में क्या है, चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल एंड बॉक्स, तो क्या होगा, शुरू का तो सारा 1 1 1 हो जाएगा, है ना, ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाय, ये होगा 3 फैक्टोरियल, समझ में आया, ऐड देम टुगेदर, थर्ड का हो जाएगा 4 आंसर 1 1 1 1, है ना, लास्ट केस करो, लास्ट केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ही लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का सब 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म ऑफ न्यूमरेटर वुड बी 1, मतलब क्या हो जाएगा, third case is 1 1 1 1, that is 4, right, and fourth case would be 8C4 4C0 4C4 8C4 इंटू 4, अभी तक कंफ्यूज हो रहे तुम लोग, हाँ, इंटू 1, बस इसका रेशो तो डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल वाली कहानी में रेशो भी एक रोल प्ले करने लगता है, आइडेंटिकल अपना रोल प्ले करता ही रहता है नॉर्मल, रेशो रोल प्ले करता है फिर, ठीक है, आइडेंटिकल विल रिमेन आइडेंटिकल ओनली, बट रेशो विल प्ले इट्स ओन रोल, वो अपने में शफल करेगा, और अपने में शफल करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 4C0 और 4C4 शफल कर रहा है ना एक दूसरे से, समझ में आ रहा है, ये और ये एक दूसरे से शफल कर रहा है ना इंटरनली, जो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइक है, समझ में आएगा, 8C4 इंटू 4C2 इंटू 2C2 इंटू 1/2 factorial, and this would again, ठीक है, समझ में आया, ठीक, क्लियर और नॉट क्लियर, ये सारे वेरिएशंस हैं जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इसको मैं और बड़ा कर दूं, अब मैं इसको कितना बड़ा करूं,
अच्छा वो नन ऑफ द बॉक्स एम्प्टी वाला जो 8 चॉकलेट्स में मैंने चारों केस नहीं कराया था ना, लेट्स डू द 4 केसेस. क्या है? 8 chocolates, 3 boxes, no empty. No box, empty. First is chocolate and box, distinct, distinct, identical, distinct, identical, identical, distinct, identical. कुछ सोच के मैंने वो बाकी का तो CD काट दिया था. पहला बताओ क्या आंसर होगा? चॉकलेट डिस्टिंक्ट, बॉक्स डिस्टिंक्ट, क्या है? टोटल केस माइनस एटलीस्ट वन, माइनस एक को एम्प्टी करना है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया. और इसका क्या होगा? चॉकलेट्स आइडेंटिकल्स, 3 बॉक्सेस, किसी के घर खाली बैग नहीं भेजना है तो 1 1 डाल दिया, तो 5 चॉकलेट्स, 2 फ्लैग्स, 7C2. ठीक है, 7C2. अब आ जाओ इसमें आइडेंटिकल में. ठीक है, तीनों बॉक्स सेम है, boxes are identicals. Now how many chocolates you have to send? 8. 1 1 6 एक केस हो गया. और क्या केस होगा? 1 2 5, 1 3 4. ठीक है, अब इसमें एक बढ़ा दो, 2. 2 2 4. 2 1 नहीं डाल सकते हो क्योंकि ऑलरेडी तुम हैंडल कर लिया उसको. 2 2 4, 2 3 3, 2 3 3. और कुछ कर सकते हो? नहीं. फिर लास्ट में बचा, बस इतना ही हुआ, अब कुछ नहीं कर सकते हो. 3 लाओगे तो रिपीट होने लगेगा, है ना? हमेशा शुरू से यहां से स्टार्ट किया करो, 1 से. इसको 1 रखो, जितना पॉसिबल है कर दिया. 2 है, 3 करते ही दिख जाएगा, रिपीट हो गया. ओके, तुम इतने ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. 1 2 3 4 5. सो आंसर क्या होगा? 5. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ, परेशान नहीं करेगा ना कोई, उसको भी सीखेंगे कैसे करेगा. अभी 2 नंबर आने वाला हमारे लाइफ में, पास्कल नंबर और स्टर्लिंग नंबर. ठीक है, अच्छा. अगर ये क्वेश्चन मैं 4th के लिए दे दूं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी सॉल्व करते हुए. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं सॉल्व करो, आंसर बताओ, क्योंकि कुछ हम निकालने वाले हैं, कुछ हम प्रूव करने वाले हैं. इसको सॉल्व कर लोगे? चॉकलेट्स आर डिस्टिंक्ट, नो? 8C1 7C1 6C6 into 1 upon 2 फैक्टोरियल. करो करो, सबको सॉल्व करके आंसर निकालो. तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालो.
निकला आंसर? ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है। पहले का क्या आया 28, दूसरे का आया 168, तीसरे का आया 280, फोर्थ का आया 210, फिफ्थ का आया 280। ऐसा ही है क्या? देखो तो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं, मेरे से भी हो सकता है। यही आ रहा है ना? 280, 280, 560 and 210, 77 and this is 196. नाइन सिक्स सिक्स, राइट, 966 है ना? सो अब ये तो समझ में आ गया कि दिस इज नॉट द राइट नाइस वे, है ना? ये तो समझ में आ गया कि बैंड बच जाएगी ऐसे सॉल्व करने में, हाँ, है ना? डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट करने में। तो ये दोनों तो एज लॉन्ग ये दोनों क्वेश्चन आई कैन हैंडल देम, आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट्स एंड आई कैन हैंडल देम। तीसरे और चौथे में प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इस वैसे ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, ठीक है, बट ये एक चीज़ है जो मैं लास्ट में हमेशा कराता हूँ। सो डोंट वरी, आज का क्लास थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इट इज़ मेंट टू बी डिफिकल्ट, एंड ये क्लास 2 से 3 बार में समझ में आ जा रहा है तो इट्स गुड। एडवांस में आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा, लेकिन कोई ठीक नहीं है ना, आ गया तो क्या करोगे? देखो, बॉक्स इज डिस्टिंक्ट, चॉकलेट इज डिस्टिंक्ट, ये आ सकता है। बॉक्स इज डिस्टिंक्ट, चॉकलेट्स इज आइडेंटिकल, ये भी आ सकता है। चॉकलेट्स एंड बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, ये भी आ सकता है। और तो फिर चौथा भी आ सकता है ना, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल था काउंट करना। अच्छा, वो वेरिएशन वाला रेशियो का कॉन्सेप्ट तो आ सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें और पुश कर रहा हूँ, पुश करने का तो आपको कॉलेज लेवल के मैथ्स पे भी पुश किया जा सकता है, लेकिन आईआईटी जेईई के हिसाब से पुश करना होता है थोड़ा सा, ठीक है। सो नाउ स्टर्लिंग नंबर, एक नंबर है जैसे एनसीआर है, एनपीआर है, सब कोई मतलब होता है ना इसका, उसी तरीके से हमारे लाइफ में स्टर्लिंग नंबर आ रहा है जिसको हम एनएसआर कहेंगे, ठीक है। एनएसआर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू फिल आइडेंटिकल बॉक्सेस, मतलब बॉक्सेस आर with distinct objects such that no box is empty। तो देखो, ऐसा तो लग नहीं रहा ना कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है डेफिनेशन से, ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है, राइट। नंबर ऑफ वेज टू फिल आइडेंटिकल बॉक्सेस with distinct objects such that, यही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 4 तरीके हैं, तो ये चौथा क्यों मिस कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो एग्जॉस्ट कर देते हैं ना केस अपना। सो एनएसआर का मतलब समझ में आ गया कि भैया आपके पास डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं लेकिन आइडेंटिकल बॉक्सेस है, मतलब आपको ही अपने मुंह में डालने हैं 3 या 4 बार, ठीक है, और हर बार कुछ डालना है,
जैसे मम्मी ला के दी 20 डिफरेंट चॉकलेट्स और आपको 1 महीना चलाना है, नहीं 1 महीना तो चला ही नहीं पाओगे, मे बी 60 चॉकलेट ला के दिए हैं और 1 महीना चलाना है, तो किसी दिन 3 खा लिया, किसी दिन 1 खाया, लेकिन हर दिन 1 चॉकलेट खाना ही है, ठीक है। तो मुंह तो हमेशा आइडेंटिकल है ना, ओके। समझ में आया एनएसआर का डेफिनेशन? चलो मान लो तुम्हारे को मम्मी ने दिया 5 चॉकलेट और बोला 5 दिन खाना है ना? कितने तरीके से खाओगे? एक ही तरीके से, है ना? 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, एक ही तरीके से खाओगे। हाँ, this tells the number of box and this tells number of chocolates. NSR में N is the number of chocolates and R is boxes, ठीक है। तो आपके पास 5 चॉकलेट्स है और 1 बॉक्स में डालना है। अभी था 5 चॉकलेट, 5 सेम बॉक्स में डालना था। 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स था लेकिन बॉक्स क्या था? सेम। 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है लेकिन बॉक्स एक ही है। सो 5s5 और 5s1 समझ में आ गया, सेम होगा, ठीक है। 5 चॉकलेट है और 10 बॉक्स है, तुम्हारे पास 10 बॉक्स है, 5 चॉकलेट है, तो खाली तो रहेगा ही बॉक्स, ठीक है। इस तीनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था? ठीक है। तो अगर प्रेफिक्स और सफिक्स सेम है तो बड़ा अच्छा, 1 आंसर। अगर प्रेफिक्स और सफिक्स सेम है तो भी 1 आंसर, है ना। जैसे NCN और NC नॉट दोनों में एक ही आंसर था, तो NSN और NS1 का भी आंसर 1 ही होगा। और अगर बॉक्स चॉकलेट से ज्यादा है तो आंसर 0 होगा। अब 10 चॉकलेट है, 2 आइडेंटिकल बॉक्स है, तो ये हो गया आपका बॉक्स, आइडेंटिकल बॉक्स। और ये क्या है? चॉकलेट्स 10। अब ये दोनों सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है मतलब सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्री होती है तो क्या करना होता है? सिमेट्री को तोड़ना होता है। और ये सारे 10 डिस्टिंक्ट हैं, तो किसी को भी उठा के रख दूंगा, मैंने एक चॉकलेट लाके इस बॉक्स में रख दिया, तो अब मेरे पास कितने बॉक्स हैं? 2 डिस्टिंक्ट बॉक्स। नाउ आई हैव 2 डिस्टिंक्ट बॉक्स एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स? तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 की पावर, है ना, शेयरेबल टू द पावर अनशेयरेबल। लेकिन अभी एक केस होगा जिसमें ये खाली हो सकता है, लेकिन एक ही केस होगा जिसमें खाली होगा। सो 10s2 का क्या आंसर हो जाएगा? समझ में आया कि फिर से रिपीट करो? आ गया सबको या फिर से रिपीट करो? नहीं। सो 2 बॉक्सेस थे, सिमेट्री थी, तो हमें सिमेट्री तोड़ना था। सिमेट्री तोड़ने के लिए हमने एक चॉकलेट निकाल के इसमें डाल दिया। नाउ आई हैव 2 डिस्टिंक्ट बॉक्स एंड 9 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, shareable to the power unshareable. But in this case there is one case in which this is empty, so I can break this by, ठीक है या नहीं? ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूं NS2 इज इक्वल टू, क्या कह सकता हूं? ठीक है। सो आपने NSN, NS1 एंड NS
2 सीख लिया। ठीक है, 2 तक तो सब आसान है। अब मान लो 10 चॉकलेट को 4 बॉक्सेस में, 3 नहीं 4, ठीक है, 4 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है हमें? 4 बॉक्स में डालना है। ये 4 बॉक्स है, ठीक है, ऐसे 4 बॉक्स है। ठीक है, हमारे पास 4 बॉक्सेस जो भी हो, केस आखिरी चॉकलेट का कैसा होगा? मतलब मैंने 9 चॉकलेट्स डाल दिए हैं और हमें कोई भी बॉक्स खाली नहीं रखना है, तो 2 केस होगा। या तो मैं आखिरी चॉकलेट यहां पे अकेला रख दूं, या आखिरी किसी में भी चला गया। मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने 3 बॉक्स में 9 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मेकिंग श्योर नो बॉक्स इज एम्प्टी। कितने तरीके से किया मैंने? 9s3 से, और लास्ट चॉकलेट यहां डाल दिया, कंडीशन फुलफिल्ड। और मैंने या तो किया 9s4 से, मैंने 9 चॉकलेट्स में चारों बॉक्स को एम्प्टी कर दिया, फिर फिल अप कर दिया, तो 10वां चॉकलेट कैसे जाएगा? कितने तरीके से जाएगा? 4, किसी भी 4 में चला गया। I am deciding on the destiny of the last chocolate. I am deciding on the destiny of, तो 10वां चॉकलेट डालने से पहले मैंने 9 चॉकलेट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? या तो मैंने फर्स्ट 3 बॉक्स में पूरा 9 चॉकलेट्स डाल दिया, प्रोवाइडिंग द कंडीशन दैट, एंड लास्ट में मैंने ये डाल दिया, लास्ट बॉक्स पे मैंने एक आखिरी डाल दिया, ताकि ऑल बॉक्स फिल्ड का कंडीशन हो जाए। या मैंने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और मैंने 9 चॉकलेट्स चारों में बांट दिया, सच दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, 9s4, और चौथा जो 10वां चॉकलेट था वो किसी भी 4 बॉक्स में चला गया। ये चीज मैं कभी भी किसी के साथ कर सकता हूं। मैं कितने भी चॉकलेट्स हूं, लास्ट चॉकलेट्स पे प्ले ऑन कर सकता हूं अपनी सिमेट्री पे, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं NSR is equal to SR into R, कह सकता हूं मैं? ये कह सकता हूं ना? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? So 10s4 can be written as this is recursion. रिकर्शन वर्ड जानते हो? फिबोनाची नंबर जानते हो? जो पुराने टर्म से नया टर्म इमर्ज कर रहा है ना? पुराने टर्म से नया टर्म हम इमर्ज कराते हैं। समझ में आया ये कैसे हुआ? n चॉकलेट्स था, r बॉक्सेस थे, तुमने n-1 चॉकलेट्स r-1 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आखिरी चॉकलेट यहां रख दिया। अब क्या किया कि तुमने
n-1 चॉकलेट्स पूरे r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद एक चॉकलेट बचा, किसी भी r बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, दिस रिकर्शन। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ, वो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हम जिसका आंसर 966 था। क्या कहानी था उसका? आपको 8 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, सच दैट नो, सो एक्चुअली आपको क्या निकालना था? आंसर वुड बी 8s3। नाउ हाउ टू कैलकुलेट 8s3? सेम कैसे सोच सकते हो, 3 बॉक्स प्लस 3 बॉक्स, राइट। आपने 8 चॉकलेट्स डालने थे, तो आपने 7 चॉकलेट्स डाल दिए, आखिरी यहां डाल दिया, या आपने इंटू 3, ठीक तो है, ये हो गया, यही यहां से आ गया ना ये, देखो। सो 7s3 into 3 plus 7s2. Do you know how to calculate this? 2 to the power 6 minus 1. So we know how to handle 2 part. We don't know how to handle 3, but by the formula recursion we can do it. तो अब देखो क्या होगा, 7s2 अलग कर दो, ये तो अलग हो गया सीरीज से, 3 into 7s3, 7s3 can be written as 6s2 plus 6s3 into 3, इसको मैं अलग रख दिया, उसको बाद में ऐड कर देंगे, ये समझ में आया? ये 7s3 को मैंने खोला है, 7s3 को मैं ऐसे खोल सकता हूं, 7s3 को खोल सकता हूं ना, एक लास्ट बॉल 6s2 और फिर 6s3 into 3, अब 6s3 को खोलना है, 6s3 को कैसे खोल सकता हूं? ठीक है, ओके, तुम 3s3 को हैंडल करना जानती हो ना, सो योर टारगेट इज टू अचीव 3s3, लेयर खोलती जाओगे तो 3s3 पे पहुंच जाओगी ना, 3 into क्या लेयर आएगा, 5s3 को कैसे करोगी? ठीक है, ब्रैकेट बाद में बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। फोर एस थ्री को खोलो, कैसे खोलोगे? 3s2 नाउ यू कैन हैंडल इट। अब सबका आंसर आ गया तुम्हारे पास, अब देखो आराम से खोलो, व्हाट इज 3s3? 3 चॉकलेट 3 बॉक्स, 1 तरीका, 1 into 3 is 3, so this is 3, and this is 3s2 is 10s2 क्या था, 2 to the power 9, so 2 to the power 2 minus 1, 2 to the power क्या होता है 3, so 3 plus 3 6, 6 into 3 18, and this is 2 की पावर 3 minus 18 plus 7 is 25, 3 is 75, and this becomes 15, क्या हो गया 90, 93 is 270, 31,
900, ये हो गया 301, तो 903, और ये जो हमने अकेला छोड़ रखा था समझ आया नहीं समझ आया? आप समझ में आया मैंने क्यों कराया था सम 966, है ना? नहीं समझ में आया? आ गया? तो स्टर्लिंग नंबर, घबराओ मत, 8 वेट से ज्यादा आएगा नहीं, 8 से ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट 8 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, समझ रहे हो ना? व्हाट ही वांट्स टू अंडरस्टैंड। अच्छा, जिसको स्टर्लिंग नंबर नहीं आता वो भी आंसर निकाल सकता है टेबल बना के, थोड़ा सा सर दर्द करेगा लेकिन, है ना, टेबल बना के कर सकता है। तो फिर से स्टर्लिंग नंबर रिवाइज करें कि आगे बढ़े? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। So what is Stirling number? So देखो, बॉक्स, बॉल्स एंड बॉक्स में डिस्टिंग का केस बहुत आराम से हम हैंडल कर लेते हैं, है ना, और आइडेंटिकल और डिस्टिंग को भी हैंडल कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? आइडेंटिकल में, क्योंकि केसेस बनाना पड़ जाता है, और डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल, इसको हम हैंडल करते हैं स्टर्लिंग नंबर से। इसको हैंडल करेंगे हम पास्कल नंबर से। विल सी व्हाट इज पास्कल नंबर लेटर ऑन, ठीक है? क्लियर? सो तो एनएसआर का मतलब होता है कि भैया यू हैव डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, identical boxes, so you have to distribute your distinct chocolates in those identical boxes such that no box is empty। जैसे आप लोग फेस्टिवल के टाइम में आइडेंटिकल बॉक्सेस बनाती है ना, कोई भी गेस्ट आता है तो दिवाली का गिफ्ट या क्रिसमस के टाइम में एक ही गिफ्ट पैक होता है ना, डजंट मैटर अंदर क्या है, अंदर तो डिस्टिंक्ट चीजें हैं, है ना। कुछ लोग तो या तो इस पे खेलते हैं या तो इस पे खेलते हैं, क्रिसमस गिफ्ट्स। जैसे आपको उड़ान में जो डब्बा आता है वो इस पे आता है ना, नहीं इस पे आता है, आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट पे। डब्बा सेम है, डिस्टिंक्ट आदमी है, लेकिन एक्चुअली उड़ान के लिए आप डिस्टिंक्ट नहीं है, उड़ान के लिए तो सब सेम है ना। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सो एनएसआर का मतलब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, है ना। डिस्टिंक्ट गिफ्ट्स हैं बट सबके गिफ्ट पैक एक ही रख दिया ताकि पता नहीं चले, रमेश भी जो उठाए, महेश भी जो उठाए, रीता शीता गीता जो उठाए, ठीक है, लेकिन उठाएगी वो कुछ डिस्टिंक्ट चीज, लेकिन सामने से दिखेगा आइडेंटिकल। तो मतलब स्टर्लिंग नंबर के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को सामान, है ना। तो अब स्टर्लिंग नंबर क्या कैसे होता है? तो एन एस एन मतलब होता है 1, एन प्रेफिक्स आपको बताता है ऑब्जेक्ट और ये बताता है बॉक्स। ये तीन केस पता है? वाई? बिकॉज आप एक चॉकलेट उठा के सिमेट्री तोड़ते हो, फिर आप 2 टू द पावर n-1 करते हो, फिर -1 इसलिए करते हो कि एम्प्टी ना रह जाए, ठीक है। एंड देन यू डिराइव दैट NSR। आप सबसे पहले एक कंडीशन लेते हो कि लास्ट बॉल जाके रखा गया आखिरी डब्बे में, तो n-1 चॉकलेट्स आप R-1 इसमें डालते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि ओके लेट्स सी कि n-1 चॉकलेट्स मैं पूरे बॉक्सेस में डाल देता हूं, और जो आखिरी चॉकलेट होता है उसको R ऑप्शंस होते हैं। This is recursion which will help you find ये नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 3 तक पूछेगा, और वो भी 7 8 जो हमने किया ना 966 वाला, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा,
और अगर किस्मत ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तो बोलते हैं पीएनसी के क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी फॉर स्टर्लिंग नंबर। जो ये जो छोड़ दिया ना ये वाला, ये पास्कल नंबर के थ्रू हैंडल होता है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्कल नंबर से एंड देन विल स्टार्ट आवर बायनॉमियल, राइट? एनी डाउट? सी, तो ऑफिशियली आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट क्लास में ही खत्म हो गया था, आज बस थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हम देख रहे थे। तो आज की क्लास किसी को समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आपको पहले समझ में नहीं आया है। आज की क्लास एसिमुलेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो समझ में आ जा रहा है जिसको, तो इसका मतलब है उसका पीएनसी तमीज़ का बना हुआ है। और जिसको आज की क्लास सर से ऊपर टोटली गई है, इसका मतलब पहले भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्लास, लेकिन अगर सर के ऊपर से गई है तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत नहीं किया। एंड दैट इज़ वाई आई डिस्कस फ्रॉम टिप टू बॉटम कि क्या क्या था। दैट इज़ इट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उतना ही है, डिरेंजमेंट के बाद नहीं होता है बात। बट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन द वेरिएशंस, राइट? सो ओनली वन नंबर इज लेफ्ट, पास्कल नंबर। एक्चुअली वो भी आपको पता चल ही गया है, लेकिन बार बार आप उसको क्लमजी तरीके से ब्रेक नहीं करते हैं, है ना। एंड इन दैट केस आपको मिस भी कर जाते हैं कि एक किस पर्टिकुलर मिस हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए विल इंट्रोड्यूस पास्कल नंबर, जो कोई छोटा है। स्टर्लिंग वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वन एंड वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर, बट नाउ आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन क्वेश्चन तभी भी क्लमजी ही होंगे, बट मैकेनिकल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप अगर आँख खोल के रखोगे तो लेयरिंग अगर ठीक कर रहे हो तो हैंडल हो जाएगा, राइट? जैसे 966 से तो जल्दी आ गया है ना, 3-4 लेयर्स खोले और आंसर आ गया। बस लेयर खोलना है। अच्छा, लेयर खोलने में इरिटेट हो गए तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, और लेयर खोलने में माइंड को पेशेंट पीसफुल रखोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ओके, एनी डाउट? सो टुमारो विल begin with Pascal number. We'll finish in 15-20 minutes and then we'll start binomial theorem. Binomial theorem is actually already started because we have touched Pascal triangle, we have touched NCR stories, right? So only few things would be left, but we'll be going for further summations and all, right? Any doubt? No, Pakka? So tomorrow I'll start the class with quiz. So be ready, I will be asking questions randomly. And since it's a question of PNC, no calculation is required, you have to answer straightforward. Okay? I won't be asking formula. Just I'll be giving you the condition scenario, you have to give me the answer, right? Okay? Any doubt? And why students are again missing? School exams? इतना difficult होता है क्या school exam? हैं? Okay. तो पास नहीं कर पाएंगे क्या?